Hello everyone, this is me Deepshikha and you are watching Hey Deepshikha. So today I'm here after a very long period of time because there were many things going, you know, ups and downs kind of things. So today आज हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे. इट इज़ नॉट totally related about a particular subject. Okay, it is about what means after when you are in a preparation phase. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं which is not very often discussed, so I'll be discussing over it and I'll be sharing my experience also. Although I'm not qualified any exam, so आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये कैसे बता रही है. I'm sharing what are the phases. So ऐसा नहीं है कि after reaching a certain point of किसी पर्टिकुलर जगह पहुंच के ही ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह पहुंच के ही आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. व्हेन यू आर in your way, when you're in the middle, or when you are you know going through that, then also experience you can share. ऐसा नहीं है कि just go there and then tell. Okay, so उसके बीच के जो ऊपर नीचे होता रहता है, I want to share or tell you or क्या बोलते हैं, interact whatever, so that we'll be discussing about. So today the topic I've choose, that is if you also feel stuck during your preparation phase. तो जैसे हमें लगता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, देर इज़ नो productive output and you feel like yeah, we should continue this ahead or we should drop this and switch to something else. तो ये जो फेज़ होता है ना, when you're stuck in the middle thing, तो ये तो होता होगा कई सारे बच्चों के साथ. और तो ये है टॉपिक. ओके, समझ. ओके, तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें होती हैं एंड वील डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन यू आर studying and you don't find any positive output of it, then you feel like कि या तो ये एग्ज़ाम कोई भी हो बहुत टफ है या मैं कुछ थोड़ा बहुत कम हूँ. तो ये दीज आर द थॉट्स वी गो थ्रू एंड दीज आर आई थिंक वेरी नॉर्मल. जिसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, देयर मे बी मैनी फैक्टर्स क्यों नहीं हो रहा है. आई एम नॉट गोइंग इन टू इट because there are already many videos on YouTube where people are telling you if you are not qualifying any exam, so आपके क्या क्या reasons हो सकते हैं. there are a lot. Okay, तो वो आप वहाँ जा सकते हैं and you can see that how to qualify exam. I'm not talking about all those things. Okay, I'm telling you about that mindset when you are there, when you think it that way. I'm talking about that mindset and I want to share also because I am in that phase, so I want to discuss it. So when you are not in a position to tell people or to yourself also what is going on, you have not joined any course, you are not enrolled in some courses जो भी चलते रहते हैं साथ साथ भी, like B.Ed और PhD और anything else जिसका नाम मुझे नहीं पता है. So you are seen as a unemployed person and when you are in this journey कुछ एक दो साल हो जाते हैं, you feel like you are not doing anything or you feel like you are doing it, the surrounding tells you that you are not doing anything. So this is what I find a problem and it is not always very comfortable or very smooth to go with. So how to deal if you have problem with it, like if you don't have any problem then very fine, बहुत अच्छी बात है. But if you have problem like me, मुझे है, so how to deal with it. And during this also you feel like कि when you give that exam और वो अच्छा नहीं जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत जोर लगा दिया, तन मन धन लगा दिया and then you are not able to do it. I am telling about when you have not given your wholehearted and the time has passed,
एंड देन यू फील लाइक स्टक वाला जो भी है, तो तब व्हाट शुड वी डू? एंड तो तब तुम्हें लगता है कि मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे से नहीं हो पा रहा है. सो देन व्हाट शुड बी डन एंड हाउ यू शुड डील विद such or such not any kind of mental strain, चिड़चिड़ापन and all that. So आई होप मैंने जो सिनेरियो जो फेस होता है वो थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा हो, या मतलब एक कॉमन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, क्योंकि आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड दे मे बी सो रेपिटेटिव. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. समझ में आ रहा है जैसे यू हैव गिवन द एग्ज़ाम और अब आपका मन नहीं करता है पढ़ने का. You also know that time is going and your precious time is going, okay? Then other people also tell you to that you are wasting your time. Then you say कि मुझे पता है पर तब भी मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं नहीं पढ़ सकता. तो ये वाला आ गया ना कि मेरे को पता है सब कुछ. आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स माई टाइम इज़ वेस्टिंग and I can do a lot of things, better things than this. And if you also see your peer going ahead, मतलब in terms of societal terms, going ahead or doing something better than you, then also you get more frustrated. और भी चीज़ें होती हैं. then sometimes you also think मैं तो फ्री हूँ and I'm unemployed. when somebody asks you क्या कर रहे हो, you have no answer. okay, तो ये जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इससे होता क्या है, द पर्सन गेट्स अंडर कॉन्फिडेंट, ही or she feels वर्थलेस. उसको लगता है कहाँ ऐसे क्या ही हो गया है, ख़राब क्या हो गया लिटरली, है ना. इतना बाहर से ख़राब कुछ दिखता नहीं है, बट फ्रॉम इनसाइड यू फील लाइक थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड स्टिल you don't study. This is the problem. So to deal with it, you need to recognize that कि हाँ ये भी stage होती है and it comes in your life sometimes too, मतलब मेरे से लोग के साथ. तो इसको कैसे सही करें, how to deal with it, right? So first of all I would say कि ये एक दिन में नहीं होगा. if I tell you do this do that, no, it will not happen in a day or in 2 days. okay, उसके लिए you need to just take a deep breath first of all. मैं आपको figure out करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि क्या आपका मन कर रहा है या नहीं. if it is a clear no, कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है. ऐसा गिल्ट नहीं लेना है कि अरे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं जीवन में पीछे चला जाऊँगा, ये वो. So these are all I would say at this point of time overthinking thoughts. Take your time, okay? If you are not feeling it like that, take your time. थोड़ा बहुत चिल करो, रिलैक्स करो. जैसे एक हफ्ता you can do कहीं घूमने जा सकते हैं. अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो you can just लिसन योर गुड सॉन्ग्स जो अच्छे लगते हैं आपको, या फिर आप थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं. डोंट स्टे एट योर होम द एंटायर डे, क्योंकि हम किसी चीज़ में एनरोल्ड नहीं है. मतलब वी आर नॉट कि जहाँ हमें रोज़ जाना पड़े, तो हमारा वो चीज़ भी होता है कि इंटरेक्शन कम होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा दिमाग में ऐसा चिड़चिड़ापन रहता है. सो आई वुड से कि आप थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करें या फिर वॉक पे जाएं, और या फिर अगर हो सके तो सुबह उठ के एक्सरसाइज या योगा या फिर एक वॉक या रनिंग में हेल्प बहुत. आपका जो एक स्टेगनेंट थिंग है वो ब्रेक होगा उससे. एंड अगेन एक दिन जाके नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आई हैव टू गो टू रन या फिर चलने मुझे जाना है वॉक पर. तो ये हेल्प कर सकता है ऑफ कोर्स. ऑल्सो इसमें एक पॉइंट है, आप अपनी एक हॉबी जो आपको अच्छी लगती हो, लाइक पेंटिंग, ओके, द मोस्ट बेसिक, सबसे अच्छी जो घर पे हो जाती है, मतलब नॉट बेसिक, या फिर आप कुछ जिसमें आपको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी थी पहले एंड आई लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ स्टडी एंड ऑल स्टफ. तो
ऐसा कुछ आप समय दे सकते हो थोड़ा उसको। तो वो जो आपका लूप है जिसमें आप फँसे हो ऑफ नॉट स्टडिंग, और आपको पता है समय बर्बाद हो रहा है तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आई थिंक इसमें वो हेल्प करेगा। ऑल्सो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड ऑल्सो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस और ओपिनियंस की ऐसे ऐसे है, या so if your friends are good understanding, so they may also tell you something because they know you better. And also you can just write down things on a diary or paper. कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे जर्नलिंग इज़ अ गुड थिंग, मीन्स नॉट ऑन डेली बेसिस, आई एम सेइंग व्हेन यू आर स्टक, या फिर आपको कुछ चीज़ परेशान कर रही है या आप सैड फील करते हो, सो राइट इट डाउन, टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट इट डाउन, सो इट हेल्प्स अ लॉट, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है उसको करके। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से आफ्टर डूइंग ऑल दिस, जो भी है आपने लिख लिया, थोड़ा वर्कआउट, रनिंग, एंड यू आर लिसनिंग टू गुड सॉन्ग्स, तो थोड़ी जैसे आप एक हफ्ता इसको करते हो तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि नाउ आई फील बेटर, इतना भी कुछ ख़राब नहीं हो रहा था। सो धीरे धीरे ट्राई टू गो टू अ लाइब्रेरी, ओके, क्योंकि घर में वो नहीं बनेगा इन स्टार्टिंग, क्योंकि आपको शुरू करना है अभी फिर से चीज़, कुछ टूटी हुई चीज़ को आप फिर से शुरू कर रहे हो। सो सिट इन लाइब्रेरी फॉर 2-3 आवर्स, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि लाइब्रेरी में आपका ध्यान नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, जाते रहिए, उसको एक हैबिट बनाइए। सो धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो भी बनेगा, धीरे धीरे, ओके। एंड व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, वर्कआउट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइटिंग एंड ऑल, फिर आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे ट्रैक में आ रहा है, एंड देन ट्राई टू मेक अ शेड्यूल फॉर योर ओन। ऐसा नहीं है कि किसी का देख के बना रहे हो, या जो बहुत सारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं कि ऐसा टाइम टेबल बनाओगे तो कभी कुछ वो नहीं होगा। मतलब एनालाइज योर थिंग्स, योर टाइम टेबल, योर शेड्यूल एंड योर टाइमिंग्स ऑफ, मतलब जब आप उठते हो, जब आप सोते हो, तो रिगार्डिंग उन सब सारे फैक्टर्स को एक्यूमुलेट करके देन मेक अ टाइम टेबल, ओके। तो फिर वो चीज़, आपका जो चीज़ छूट गई है वो फ्लो में आएगी, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग, एंड फिर से आप पढ़ने लगोगे। सो दीज ऑल आर द थिंग्स, एंड ऑल्सो यू कैन मार्क योर डेज, एक हैंड कैलेंडर बना सकते हैं और उसमें मार्क कर सकते हैं सारी चीज़ें। और मतलब आई हैव पेस्टेड हैंड कैलेंडर, मैंने खुद से हाथ से बनाया है, तो आई हैव मार्क्ड, आई कैन शो यू ऑल्सो ऑन माई वॉल। कहाँ है, तो ये है, अभी अपोजिट दिख रहा होगा, नवंबर तक का मैंने बना रखा है, एंड आई हैव मार्क्ड द डेज ग्रीन रेड एंड पिंक। तो अकॉर्डिंग टू यू जो आपको बेस्ट लगता है, मतलब so do it. Red means not very properly done, green means properly done, pink means in between, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो ऐसे करके आप अपने कुछ मार्कर्स बना सकते हो। Also I write my daily things what I want to do here in my board, because currently I'm sitting in my bed, so मेरे एक हाथ पे ये होता है, एक हाथ पे ये, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ट्राई टू जस्ट कीप योर थिंग्स नियर। अगर ये बोर्ड कहीं दूर होता तो आई वुड नॉट राइट इट एवरी डे, सो आई हैव मेड इट एक्सेसिबल, राइट। अब मुझे मिटाना है तो ये आई कैन रब इट, सो एक्सेसिबल होनी चाहिए चीज़ें, देन ओनली यू कैन डू थिंग्स, एंड दिस इज़ हाँ, so these are all the things you can collect, you can do, and not worrying about too much, because सोचने से तो कुछ होगा नहीं, करके ही होगा। सो लिटिल स्टेप्स एवरी डे, अगर नॉट एवरी डे ऑल्सो, मतलब आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट और कि आप थोड़ी दोगे, आई जस्ट वॉन्ट कि वो जो मेंटल स्टेट है ऑफ नॉट स्टडिंग वो थोड़ा सा मोशन में आ जाए, ताकि फिर से वो जो आपका मोमेंटम है ऑफ स्टडिंग
वो बन जाए, दैट इज़ इट। इतना ही मुझे बोलना है। एंड आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू द सॉल्यूशंस एंड yeah, that is it for today. If you like this video, let's do the formality also. Give a like. I am not even saying to subscribe my channel because I don't put too much efforts like other people do. So मतलब मेरी बात सही लगी हो तो just give it a thumbs up and do comment if you agree, if you find it relatable or not, मतलब ये होता है आपके साथ या नहीं, या फिर कुछ और भी है। इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, ऑल्दो कुछ मैंने मिस नहीं किया है, बट दिस इज़ इट ओवरऑल। थैंक यू।